Hi guys, welcome to my YouTube channel Science Classes by Diksha Jain. This is Diksha ma'am here, and in this video I'm going to continue about the chapter microorganisms. In previous video we already studied about the usefulness of microorganisms. We have studied usefulness of microorganisms in food such as breads, cakes, paneer, cheese, etc. And we also studied the usefulness of microorganisms in industries, like in production of alcohol, beer, wine, and vinegar. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो I'll put a tag right above, and if you have seen it, it's well and good. Let's move on to the next part, or the next advantage of microorganisms. The first one today we are given is that they are used in agriculture in order to increase soil fertility. Now we know that for agriculture fertility होना is very important. तो fertility कैसे होगा? जब सारे nutrients आपके soil में correct amount में present होंगे. Now one thing very interestingly that you should know is that plants जो है वो oxygen and carbon dioxide जैसे directly exchange कर सकता है, वैसे वो nitrogen gas नहीं ले पाता and nitrogen को वो use भी नहीं कर पाता directly. तो उसके लिए उनको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एजेंट की जरूरत होती है जो नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करके देते हैं. सो देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनके रूट में आपको ऐसा स्वोलन पार्ट दिखेगा. आप यहाँ देख सकते हो, ये रूट है एक प्लांट की और यहाँ पे कुछ स्वोलन स्ट्रक्चर्स है. ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर्स है इनको हम नोड्यूल्स बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स या फिर लेग्यूम्स. इन लेग्यूम्स के अंदर में एक स्पेशल बैक्टीरिया which is the rhizobium bacteria is found. This rhizobium bacteria actually helps in trapping atmospheric nitrogen and converting it into soluble forms in the soil so that the plants can use them up very easily. So basically कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप जैसे राइजोबियम एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ट्रैप करता है इनटू द सॉइल एंड सॉइल में उनको सोल्यूबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है एंड प्लांट्स को नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है. Now this as per increases the fertility of the soil, thereby microorganisms are used in agriculture or they have advantage in agriculture. Also the process of fixing nitrogen is called nitrogen fixation, and not only rhizobium, blue-green algae which is a type of algae, it also helps in fixing atmospheric nitrogen into the soil. So let's check up कि next अपने को क्या advantage दिया है. The next advantage given to us is in the field of medicines. Now medicines के field में क्या advantage microbe कर सकते हैं? Last class और उसके भी पहले क्लास में बहुत सारा मिसकंसेप्ट अगर आपके दिमाग में रहा है कि नहीं, आपने तो बोल दिया कि माइक्रोब्स यूजफुल है पर जर्म्स तो होते ही हैं, जर्म्स तो डिजीज कॉज करते हैं. तो सर्टेन टाइम्स क्या करते हैं हम, जर्म्स को ही या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करता है इन ऑर्डर टू किल और स्टॉप द एक्शन ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब आप यूज करते हो in order to kill or stop the growth of though that certain disease causing microorganisms in your body, there is where the role of medicines comes into play. And medicine में कौन use हो रहा है? Microorganisms. अब दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि क्या बोल रही है ये ऐसे थोड़ी होगा, बट ऐसा ही है. लेट मी टेल यू. सी, इन मेडिसिन्स the microbes are first used to produce antibiotics. Now what are antibiotics? Antibiotics are chemical substances produced from microbes to kill or stop the growth of pathogens. हम लोग certain times bacteria and fungi most of the times उनको यूज करते हैं और उनसे जनरेटेड केमिकल्स को यूज करते हैं टू किल और स्टॉप द एक्शन ऑफ पैथोजेंस इन आवर बॉडी. जब हम वैसा करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं उनसे रिड पा लेते हैं या उनसे हम बच जाते हैं. Am I clear to you? So antibiotics are certain medicines which help you to stop the growth of microorganisms in your body or kill those disease causing microorganisms present inside your body. Antibiotics जो है ये बहुत ही कॉमन है, ये नाम आपने जरूर सुना होगा. हमारे यहाँ इंडिया में एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमनली यूज होता है. कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इन्फेक्शन एंड ऑल, तो आपको एंटीबायोटिक दिया ही जाता है. एंटीबायोटिक एक्चुअली वो डिजीज स्प्रेड करने में, वो माइक्रोब को किल करने में यूज होता है. Now what are the examples given to us here?
First given to us is streptomycin, second is tetracycline, third is neomycin, and fourth is penicillin. Remember, penicillin is the antibiotic which was first discovered. पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था दैट इज पेनिसिलिन. इट वाज डिस्कवर्ड बाय whom? इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928. ठीक है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए काम आया था एंड अभी तक इसकी सक्सेसफुल यूज हो रही है. So this was about antibiotics, use of microbes in antibiotics. Now second is use of microbes in production of vaccine. Now vaccine तो आपने definitely ली है, पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन ली है, डीपीटी के अगेंस्ट वैक्सीन ली है, आपने डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन ली है. तो वो सब जो वैक्सीन ली है वो क्या है? अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मेडिसिन है, कुछ मैजिक है जो डॉक्टर आप में इंजेक्ट करता है और ऑल ऑफ अ सडन आपको वो डिजीज नहीं होगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ है नहीं. ये कोई मैजिक नहीं है और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में नहीं है. जब डिस्कवर हुआ था तो था, बट नाउ इट इज अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक. वैक्सीन जो है, दीज आर नथिंग बट डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म which can cause disease inside your body. सपोजेडली फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है जो आपके बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है, तो हम उससे ही सिमिलर या उसी बैक्टीरिया को इधर डेड फॉर्म में या वीक फॉर्म में आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से आपको फर्दर फ्यूचर में रेजिस्टेंस मिलती है फ्रॉम द डिजीज. कैसे मिलती है वो मैं बताऊंगी, बट वो इंजेक्ट करने को ही या वो जो आप इंजेक्ट कर रहे हो अंदर उसी को ही आप वैक्सीन बोलते हो. तो अगर आप वैक्सीन कुछ मेडिसिन समझ के ले रहे थे तो माय डियर स्टूडेंट्स वैसा है नहीं. आप अपने आप की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में खुद से ले रहे थे अभी तक विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर्स. सो इट डजंट मीन्स कि आप वो मत लो, आपको लेना ही है, पर अभी आपको पता है कि वैक्सीन क्या है. So basically, what are vaccines? Vaccines are substances used to produce immunity to diseases in the living body. Now, what is immunity? Immunity is the ability of the body to resist the disease by natural or artificial means. आपका body जब आप एकदम एक्चुअल में कोई भी डिजीज को फाइट करने के लिए केपेबल हो जाएगा, तब हम उसे बोलेंगे कि आपकी बॉडी के पास इम्यूनिटी है या आप इम्यून हो. Am I clear to you? So basically, let's see how vaccines work. वैक्सीन कैसे काम करता है देखिए. आप एक वीक माइक्रोब को या डेड माइक्रोब को इंजेक्ट करवाते हो इनसाइड योर बॉडी. ठीक है, जैसे आप इंजेक्ट करवाते हो आपकी बॉडी जो है वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि ये पर्टिकुलर माइक्रोब डेड या वीक है. रिमेंबर, डेड और वीक माइक्रोब डायरेक्टली डिजीज कॉज करने की पोटेंशियल नहीं रखते, तो इस केस में हमारे बॉडी को ऐसे भी डिजीज होगा नहीं. बट जब आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, as soon as you add it, your body will find it as a potential disease causing agent कि ये तो डिजीज कॉज कर सकता है. तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट बहुत सारी केमिकल्स फॉर्म करेगी. और ये केमिकल्स क्या है? These chemicals are nothing but antibodies. Now you should remember that antibodies are chemicals generated from WBCs of your body, and these are used by your body to fight against diseases. तो जैसे ही आपकी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करेगी, वो जाके उस डेड या वीक माइक्रोब के अगेंस्ट लग जाएगी वॉर पे एकदम कि भाई इसको तो मेरे को हराना है. तो आपको पता है कि डेड और वीक तो ऐसे भी हारेगा ही, तो वो हार जाएगा. मोस्टली ऐसा ही होता है. तो जैसे ही ये होगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उनके पास एक स्पेशल कैपेसिटी है टू रिमेम्बर कि क्या हुआ. तो इट विल लर्न फ्रॉम इट कि अगर ऐसा माइक्रोब आया तो मेरे को क्या करना. तो नेक्स्ट बार जैसे ही कोई पोटेंशियल माइक्रोब आएगा, अब ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद कभी वैसा माइक्रोब आपकी बॉडी में आएगा ही. माइक्रोब्स आते ही रहते हैं ऑल द टाइम. जब भी ऐसा कोई माइक्रोब आएगा, आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी एक आर्मी रेडी होगी. देखिए कितना सारा डायग्राम्स, इतना सारे एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए. ऑलरेडी एक आर्मी होगी. जैसे ही रिकॉग्नाइज होगा कि कौन सा माइक्रोब आया है इस पर डिजीज कॉज करने, वैसे ही आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी और बहुत सारे एंटीबॉडीज ऑल टुगेदर जाके उन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो इस तरह से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, इम्यून हो जाएगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज.
और आप कभी भी फ्यूचर में उस डिजीज से सफर नहीं करोगे. Am I clear to you? So this is how a vaccine works. And in case of use of microbes in medicines, दो जगह पे उनका application है. First is in antibiotics and second is in vaccine formation. So now there are some important points given to us. Let's check out. First given is that vaccination is administration of vaccine to boost one's immune system. Now thing is कि जब आप वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे थे, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम देख सकते हैं, तो ये जो इंजेक्ट करने की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, नथिंग एल्स. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट में अपने को यही दिया हुआ है दैट वैक्सीनेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू बूस्ट वंस इम्यून सिस्टम. The second point we are given that Louis Pasteur showed that disease were caused by microbes. लुई पैस्चर फर्स्ट बोले थे कि डिजीजेस जो है वो माइक्रोब से स्प्रेड होती हैं और उनके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनाई उनके अगेंस्ट में वैक्सीन फिर फर्दर एडवर्ड जेनर ने प्रिपेयर करी थी. बट यहाँ पे पहले दिया हुआ अपने को दैट एंटीबॉडी क्या है. अब आपको पता है दैट एंटीबॉडी इज अ सब्सटेंस इन द ब्लड दैट हेल्प्स टू प्रोवाइड इम्यूनिटी. और आपके बॉडी में कौन से सेल्स एंटीबॉडी फॉर्म कर सकते हैं? रिमेंबर, इट इज white blood cells or WBCs of your body. वो आपके लिए हमेशा डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं. ठीक है. And then next we are given that Edward Jenner discovered vaccine for smallpox in 1798. This was the first vaccine ever produced. And उसी के बाद से वैक्सीन जो है वो काफी ज्यादा यूज में आ गया. And lastly, we are given that some diseases against which vaccines are available. क्या-क्या diseases के against vaccine available है? Polio, smallpox, tuberculosis, diphtheria and बहुत सारे दूसरे भी हैं. ये कुछ examples हैं, आपको याद रखने हैं. So, 13 important points we discussed, like what is vaccination, who was Louis Pasteur. Louis Pasteur was a scientist who said that diseases are caused because of microorganisms. And what are antibodies? Antibodies are substances that are found in blood and these are produced from WBCs in order to provide us immunity. And next we studied that Edward Jenner, remember the name my dear students, Edward Jenner discovered vaccine for smallpox in which year? In 1798. And can you name certain diseases now against which vaccine is available? क्या-क्या disease आप जानते हो? Polio, smallpox, tuberculosis, diphtheria, etc. Very nice. Now, in the next slide, we are given that microbes are used in cleaning the environment. Now, how are they used in cleaning the environment? कैसे use होता है? अब अपने को पता है, हमने already पढ़ के आया that bacteria and fungi, they can feed on dead and decaying matters. Fungi are saprophytic in nature. तो जो dead और decaying matters होते हैं already, लैंड में या वाटर में कहीं पे भी उन पे बैक्टीरिया या फिर फंगी दे कैन एक्ट. एंड व्हाट दे डू, दे फीड ऑन देम, दे ब्रेक द कॉम्प्लेक्स बॉडीली स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स. अभी जैसे आपके बॉडी में प्रोटीन्स है बहुत सारा, है ना, फैट्स है, तो वो सब स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. वंस इफ आई डाई और एनी प्लांट डाइज और एनीबॉडी, एनी एनिमल डाइज, तो उस केस में क्या होगा, आपका बॉडी का जो प्रोटीन है या फैट्स है जो अभी वेस्ट हो गया है, वो सब माइक्रोब के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इन सिंपलर फॉर्म्स दैट दे कैन यूज एंड दे विल मिक्स विद द सॉइल पार्टिकल्स और द वाटर नियर बाय. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड decomposition. And because of that process, certain nutrients they get recycled in the nature. Suppose प्रोटीन को आप ब्रेक करते हो तो नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म होता है. अब नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? फिर से सॉइल में. तो प्लांट्स उसको फिर से यूज कर सकती है. फिर प्लांट उसको अगर यूज कर सकती है तो वो फिर से दूसरे एनिमल्स के पास जा सकते हैं. कैसे? प्लांट को सपोज गोट ने फीड किया तो गोट के पास भी नाइट्रोजन गया. फिर गोट को सपोज टाइगर ने फीड किया तो टाइगर के पास भी नाइट्रोजन गया. वो अपने अपने प्रोटीन्स बनाने में यूज लेंगे. तो उस तरह से न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग जो है वो बिकॉज ऑफ डीकॉम्पोजिशन पॉसिबल हो जाता है. Thereby, they perform two roles. First, they help in cleaning the environment by removing dead and decaying matters from the surrounding. They act as decomposers. And secondly, they help in nutrient recycling. Am I clear to you? Other than these, one important point is also there that microbes, they also play a very important role in sewage treatment plants. हमारे city के जितने भी waste है,
यूरिन हो या आपके लू हो, वो सब एक जगह कलेक्ट होके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाते हैं। वहां पे एक सेंटर होता है, एक एरिया होती है जहाँ पे कंप्लीटली हम माइक्रोब्स को एक्ट करने के लिए अलाउ करते हैं ऑन द वेस्ट मैटर्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंटायर सिटी और द एंटायर टाउन देयर। एंड जब ये होता है तो धीरे धीरे जो कम्प्लेक्स मैटर्स है वो वेस्ट में वो धीरे धीरे ब्रेक होता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स दैट कैन नॉट बी दैट टॉक्सिक, एंड उसको आप वाटर में रिलीज कर सकते हो। So basically, how microbes help in cleaning the environment? Microbes like bacteria, fungi bring about the decay of dead plants and animals, both on land and water. They act on complex organic compounds and convert them into simple inorganic substances. Hence, they help in recycling of substances or nutrients. And microbes also play an important role where in sewage treatment plants. So I hope you understood whatever was taught in this video. We discussed about 3 different advantages of microorganisms. First was what? First was use of microorganisms in agriculture in order to increase soil fertility. What was second point? In medicines. Kya banane mein? Antibiotics and vaccines. And third one was in cleaning the environment. So with this, advantages of microorganisms is complete now. In the next video, I'm going to discuss about the harmful effects of microorganisms in our lives. So stay tuned to my channel. Hit the like button if you like my video, share it with your friends, and please subscribe my channel. So bye-bye.